دوستو دنیا میں ایک ایسی دیوار موجود ہے جسے دیکھ کر لوگ صرف اس کی لمبائی پر نہیں بلکہ اس کی تعمیر پر بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، آخر ہزاروں سال پہلے نہ کرین تھی، نہ بلڈوزر، نہ ماڈرن مشینری، پھر بھی اتنے بلند پہاڑوں پر یہ عظیم دیوار کیسے بنائی گئی؟ یہ ہے گریٹ وال آف چائنا۔ دوستو یہ صرف ایک دیوار نہیں بلکہ انسانی ہمت، پلاننگ اور بے مثال انجینئرنگ کا زندہ مثال ہے۔ اس کی تعمیر مختلف چینی سلطنتوں نے کئی صدیوں تک مرحلہ وار کی تاکہ شمال سے آنے والے حملہ آوروں سے اپنی سرزمین کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ دیوار پہاڑوں، وادیوں، شہروں سے گزرتی ہوئی ہزاروں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے عظیم انسانی تعمیرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دیوار کو ہر علاقے میں وہی سامان استعمال کر کے بنایا گیا جو وہاں آسانی سے دستیاب تھا، کہیں پتھر، کہیں اینٹیں اور کہیں دبی ہوئی مٹی۔ اس دیوار کو سیدھا میدانوں میں نہیں بلکہ بلند پہاڑوں، خطرناک ڈھلانوں اور دشوار گزار وادیوں کے اوپر سے تعمیر کیا گیا۔ آج بھی جدید مشینری کے بغیر ایسے پروجیکٹ مکمل کرنا انتہائی مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ ایسی غیر معمولی پلاننگ، محنت اور انجینئرنگ کی وجہ سے گریٹ وال آف چائنا کو انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انجینئرنگ پروجیکٹ میں شمار کیا گیا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ دیوار کو دیکھنے آتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس کی محنت کا اندازہ نہیں لگا پاتے جو اس کے ہر پتھر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اور جب کوئی دیوار پر قدم رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس دور میں اتنی عظیم پروجیکٹ کیسے مکمل کیے گئے؟ اور شاید سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی گریٹ وال آف چائنا کے راز آج تک مکمل طور پر حل نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ صرف پہلا عجوبہ تھا۔ دوستو دنیا میں ایک ایسی عمارت موجود ہے جسے دیکھ کر آج بھی انجینئرز اور آرکیٹیکٹ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے تاج محل۔ لوگ صرف اسے محبت کی نشانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ 1632 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں اس عظیم عمارت کی تعمیر شروع کروائی۔ ہزاروں ماہر کاریگر، سنگ تراش اور انجینئرز نے تقریباً 22 سال تک مسلسل محنت کر کے اس شاہکار کو مکمل کیا۔ دوستو تاج محل سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا جو دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ صبح ہلکا گلابی جھلک، دوپہر کو چمکتا ہوا سفید اور غروب آفتاب کے وقت سنہری رنگ اس کی خوبصورتی کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل کمال صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی انجینئرنگ ہے، کیونکہ تاج محل دریائے جمنا کے بالکل قریب واقع ہے اور اس کی بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے اس دور کی بہترین انجینئرنگ کا استعمال کیا گیا۔ اس کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر کے ساتھ فیروزہ، لاجورد، عقیق اور دوسرے قیمتی پتھر بھی جاڑے گئے جو آج بھی روشنی میں چمکتے نظر آتے ہیں۔ تاج محل کا ہر نقش، ہر آیت اور ہر ڈیزائن اتنی باریکی سے تیار کی گئی کہ قریب سے دیکھنے پر بھی اس کی فنیشنگ انسان کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس بے مثال پلاننگ، نفیس کاریگری اور انجینئرنگ کی وجہ سے تاج محل کو دنیا کی عظیم ترین آرکیٹیکچر ماسٹر پیس میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس شاہکار کو دیکھنے آگرہ آتے ہیں۔ اور شاید سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تقریباً 4 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی تاج محل کی خوبصورتی اور انجینئرنگ دنیا بھر کے ماہرین کو متاثر کر رہی ہے۔ سوچئے ایک پورا شہر جو اینٹوں سے نہیں بلکہ سیدھا پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا ہو، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا آج تک اس کے رازوں کا جواب نہیں ڈھونڈ سکی۔ یہ ہے پیٹرا، جارڈن کے صحرائی پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا یہ قدیم شہر دنیا کا سب سے حیرت انگیز عجوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک سخت چٹان نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی تنگ راستہ ختم ہوتا ہے سامنے ایک ایسا منظر آتا ہے جو دیکھنے والے کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ پیٹرا کو تقریباً 2000 سال پہلے نباتین سیولائزیشن نے تعمیر کیا تھا۔ یہ لوگ صرف ماہر نہیں تھے بلکہ غیر معمولی انجینئرز بھی تھے۔
उन्होंने सख्त चट्टानों को तराश कर महल, कब्रें और शानदार इमारतें बनाई, जिन्हें देखकर आज भी माहिर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, सबसे मशहूर इमारत अल खज़नी यानी ट्रैयर है, जिसकी नफीस तराशी और शानदार डिज़ाइन देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब जदीद मशीनरी के बगैर बनाया गया था। लेकिन पेट्रा का असल कमाल सिर्फ ये खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी इंजीनियरिंग थी। रेगिस्तानी इलाके में रहते हुए नबातीन सिविलाइजेशन ने बारिश के पानी को महफूज करने के लिए नहरें, टनल्स और बड़े बड़े रिजर्वियर तैयार किए। इसकी बेमिसाल प्लानिंग की वजह से पेट्रा सदियों तक कामयाब तिजारती मरकज़ बना रहा। यहाँ से गुजरने वाले तिजारती काफिले अरब, मिस्र और शाम को आपस में जोड़ते थे, जिसकी वजह से पेट्रा दौलत और तहजीब का मरकज़ बन गया था। आज भी लोग अल खज़नी के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी इंजीनियरिंग और प्लानिंग को देखकर और भी मुतासिर रह जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग सिर्फ एक मंजर देखने के लिए जमा होते थे और चंद लम्हों के बाद पूरा मैदान तलवारों की तरकराहट, लोगों के नारे और जंगली जानवरों की धारों से गूंज उठता था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि तकरीबन 2000 साल बाद भी ये इमारत दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस दौर में ऐसी इंजीनियरिंग आखिर मुमकिन कैसे हुई। ये है कोलोसियम। इटली के शहर रोम में वाक़या ये अजीम एम्फी थिएटर रोमन एम्पायर की ताकत, इंजीनियरिंग और फ़न तामीर का बेमिसाल शाहकार माना जाता है। इसकी तामीर पहली सदी ईस्वी में रोमन बादशाह वेस्पियन के दौर में शुरू हुई और बाद में मुकम्मल हुई। एक वक्त में इसके अंदर 50,000 से ज़्यादा तमाशाई बैठ सकते थे। ये ग्लैडिएटर के मुकाबले, जंगली जानवरों के तमाशे और अवामी नुमाइशें मुनक्किद होती थीं। पूरा मैदान चंद लम्हों में शोर से भर जाता था। लेकिन कोलोसियम का असल कमाल सिर्फ उसके मुकाबले नहीं थे, बल्कि उसकी इंजीनियरिंग थी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के अंदर आने के बाद बाहर निकलने के लिए ऐसे रास्ते और निज़ाम तैयार किया गया था जिसके मिसाल आज भी जदीद स्टेडियम में देखने को मिलती है। और सबसे बड़े राज ज़मीन के नीचे छुपे हुए थे। रोमन इंजीनियरिंग ने कोलोसियम के नीचे सुरंगें, कमरों और मैकेनिकल लिफ्ट के ऐसे निज़ाम तैयार किए थे जो अपने दौर से सदियों आगे था। इन ज़मीनी रास्तों में ग्लैडिएटर्स अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, जबकि जंगली जानवरों को ख़ास पिंजरों में रखा जाता था। ये निज़ाम उस ज़माने के लिए इतना गैर मामूली था कि आज भी तारीख़ और इंजीनियरिंग के माहिरीन इसकी प्लानिंग और डिज़ाइन की तारीफ़ करते हैं। इस बेमिसाल प्लानिंग और इंजीनियरिंग की वजह से कोलोसियम को सिर्फ तारीखी इमारत नहीं, बल्कि इंसानी जहानत और रोमन इंजीनियरिंग का जिंदा शाहकार माना जाता था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि तकरीबन 2000 साल गुजरने के बाद भी कोलोसियम दुनिया के लाखों लोगों को अपनी तारीख और इंजीनियरिंग से मुतासिर कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा पिरामिड जो पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि वक्त, सूरज और सितारों का हिसाब भी रखता हो। हर साल हजारों लोग सिर्फ एक साया देखने के लिए यहाँ जमा होते हैं। ये है चिचेन इत्जा, मेक्सिको में वाक़या अजीम कदीम शहर। माया सिविलाइजेशन की गैर मामूली जहानत, इंजीनियरिंग और फल्कियात के इल्म से जिंदा सबूत माना जाता है। यहाँ मौजूद मशहूर पिरामिड एल कैसियो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा शाहकार है जो फल्कियात और रियाजी के असूलों को मद्देनजर रखते हुए तामीर किया गया। माया तहजीब के लोग सूरज, चांद और सितारों की हरकतों का गैर मामूली इल्म रखते थे। इसी इल्म की बुनियाद पर उन्होंने ऐसी तामीर की जो आज भी दुनिया के माहिरीन को मुतासिर करती है। लेकिन इस पिरामिड का असल कमाल साल के एक ख़ास दिन नज़र आता है। हर साल जब बहार और खिज़ां के मौसम में दिन और रात बराबर होते हैं तो सूरज की रोशनी एल कैसिलो की सीढ़ियों पर ऐसे साया बनाती है जो रेंगते हुए शाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये मंजर इतनी बारीकी से प्लान किया गया था कि आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियन माया सिविलाइजेशन की फल्कियात और रियाजियात की समझ को देखकर हैरान रह जाते हैं। चिचेन इत्जा सिर्फ एक पिरामिड नहीं, बल्कि इल्म, इबादत
और हुकूमत का एक अजीम मरकज था जहां दूर दूर से लोग आया करते थे। आज भी हर साल लाखों सैलानी इस हैरत अंगेज मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए मेक्सिको का सफर करते हैं। इस बेमिसाल प्लानिंग, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एक्यूरेसी की वजह से चिचेन इत्जा को इंसानी तारीख के अजीम तरीन आर्किटेक्चर और साइंटिफिक शाहकारों में शुमार किया जाता है। और शायद सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि तकरीबन 1000 साल गुजर जाने के बाद चिचेन इत्जा के राज आज तक माहिरीन के लिए एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक अजूबा था। अब हम उस शाहकार की तरफ बढ़ेंगे जो बादलों से भी ऊपर बसा हुआ है और जिसे दुनिया आज भी माचू पिचू के नाम से जानती है। सोचिए, बादलों के ऊपर बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक पूरा शहर आबाद हो और सबसे हैरत अंगेज बात, सदियों तक दुनिया को इसके वजूद का पता ही ना चले। ये कोई अफसाना नहीं, ये है माचू पिचू। पेरू के एंडेस माउंटेन की बुलंदियों में वाक़या ये कदीम शहर इनका सिविलाइजेशन का सबसे अजीम शाहकार माना जाता है। तकरीबन 600 साल पहले तामीर किया गया ये शहर ऐसी जगह बनाया गया जहां आज भी पहुंचना आसान नहीं। लेकिन इसका कमाल सिर्फ इसकी बुलंदी नहीं बल्कि उसकी इंजीनियरिंग है। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े पत्थर बगैर सीमेंट या गारे के इस कदर बारीकी और मेहनत से जोड़े गए हैं कि आज भी इनके दरमियान एक पतली छुरी की धार तक दाखिल करना मुश्किल माना जाता है। लेकिन हैरानी यही खत्म नहीं होती। माचू पिचू में पानी की निकासी का निज़ाम, ज़राती टेरेस और पत्थरों की फिटिंग इतनी सोच समझ कर की गई कि सख्त बारिश और ज़लज़लों के बावजूद ये शहर आज तक अपनी पहचान कायम रखे हुए है। माहिरीन का मानना है कि इनका सिविलाइजेशन के इंजीनियर्स ने फितरी ज़मीनी सूरत हाल को समझकर ऐसी प्लानिंग की जो अपने ज़माने से कई सदियां आगे थी। इसलिए आज भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर माचू पिचू के मुतालिया करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस गुमशुदा शहर को देखने पेरू का सफर करते हैं। मगर मुसाफिर के जहन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर इनका सिविलाइजेशन के लोग इतने अजीम शहर बनाकर इसे छोड़कर कहां चले गए। और शायद सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चाहे सदियां गुजर जाने के बाद भी माचू पिचू के कई राज आज तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं किए जा सके। लेकिन ये तो सिर्फ एक अजूबा था। अब हम अपने सफर के आखिरी अजूबे की तरफ बढ़ेंगे जहां एक अजीम मुजस्मा अपने बाजू फैलाकर पूरे शहर का इस्तकबाल करता नजर आता है। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा मुजस्मा है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन चुका है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी बुलंद पहाड़ की चोटी पर 30 मीटर से ज्यादा बुलंद ये अजीम मुजस्मा आखिर तैयार कैसे किया गया। ये है क्राइस्ट द रिडीमर। ब्राजील के मशहूर शहर रियो द जनेरो में कोरकोवाडो माउंटेन की चोटी पर खड़ा ये अजीम मुजस्मा दुनिया का न्यू 7th वंडर में शुमार होता है। दोनों बाजू फैलाए ये मुजस्मा अमन, उम्मीद और इंसानी यकजहती की अलामत माना जाता है। इसकी बुलंदी और इसका मुकाम ऐसा है कि रियो द जनेरो के बेशुमार हिस्सों से ये आसानी से नजर आता है। लेकिन इसका असल कमाल सिर्फ इतनी बुलंदी नहीं बल्कि इसकी इंजीनियरिंग है। क्राइस्ट द रिडीमर को रीइंफोर्स कंक्रीट और सोप स्टोन की बारीक टाइल से तैयार किया गया है ताकि ये सख्त बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने के बावजूद सालों तक मजबूती से कायम रहे। इनके दोनों बाजू तकरीबन 28 मीटर तक फैले हुए हैं और जब आप इसके बिल्कुल नीचे खड़े होते हैं तो इसकी अजमत का अंदाजा तस्वीरों से कहीं ज्यादा होता है। इस बेमिसाल प्लानिंग, इंजीनियरिंग और फन तामीर की वजह से क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ ब्राजील की पहचान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन, उम्मीद और इंसानी यकजहती की एक अजीम अलामत बन चुका है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ मुजस्मे को देखने नहीं बल्कि कोरकोवाडो माउंटेन की चोटी से उस दिलचस्प मनाजिर और एहसास को महसूस करने भी आते हैं। 7 ममालिक, 7 अजीम शाहकार और एक पैगाम। जब इंसान के पास ख्वाब, इल्म और मेहनत हो तो वो ऐसे कारनामे अंजाम देता है जो सदियों बाद भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। अब हमें जरूर बताइएगा कि इन 7 अजूबों में आपको
کون سا عجوبہ سب سے زیادہ بہترین اور حیران کرنے والا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔